Good evening, everybody. I'm Akriti Goyal. I am one of the founder of Akshay Training and Consultancy. Shravya is another friend, my partner, whatever you can say. But she was little unwell today. She was supposed to take this demo class, but eventually somehow she really got unwell in the evening, and therefore here I am. I will be taking your demo. I will be talking about tarot cards over here. So basically, I think if you guys have joined this particular course, possibly half of you would be readers, half of you would be really new people to this domain. So can I just see some raised hands if any one of you is already a reader? Anuradha and Monica is one, definitely. Vandana just told that she's in the process of learning. So what about else, others? Anyone who's a reader already? Okay. So possibly no one is reverting right now. Chalo, I'll move forward. Okay, Shravi says that she's new. Okay, great. So if in case you are a new person, okay, I'm a Carto reader. Yes, Monica is a Carto reader. I'm sorry. Okay, so these are tarot cards. Tarot cards look like this. ठीक है, तो अब क्या है, बेसिकली देयर इज अ वेरी बिग मिथ आउट देयर दैट टैरो कार्ड्स ना हमें भविष्यवाणी करके देते हैं. नो, it is not bhavishywani. First of all, it is about the guidances you all need in life. We all need in life, right? For example, matlab ab I am an individual, so what do I have to pursue? I have multiple choices in life, I have multiple confusions in life, राइट, एंड आई नीड अ लॉट ऑफ पाथवे. हम कहते हैं ना कि हमें कोई सही रास्ता थोड़ा सा दिखा दे, पुश कर दे, फिर उसके बाद हम उस चीज को आगे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो चलता है, राइट? सो बेसिकली टैरो कार्ड्स हेल्प्स यू इन दैट पर्टिकुलर थिंग, and it gives you readings. It gives you how the other person feels about you. It tells you how okay, people are joining in. So it tells you how you feel about certain people, what your angels wants to give you the messages and everything. So all these things are basically in this basic divination tool. These are the tarot cards. And tarot cards best reading hote hain ye rider weight ke. Any tarot card reader, there are a lot many oracle cards out there. Matlab, there are, I don't even know, in countries like Paris, France and everything, वहां पर इतने बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेक्स ऑफ कार्ड्स के बेसिस पे. सो देयर आर अ लॉट ऑफ डेक्स आउट देयर, बट जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है दैट इज दिस डेक, दैट इज द राइडर वेट. राइडर वेट के भी बहुत सारे प्रिंस रीप्रिंट्स आते हैं, राइट? जैसे आई आई कैन शो यू वन, वेट आई शो यू. मुझे सामान निकाल कर रखना चाहिए था. Okay, one second. Mm, light shears एक deck होता है, which I'm not able to find right now. I'll share the picture in the group. ठीक है, but हाँ, light shears एक deck होता है, वो राइडर वेट का एक modernized form है. उसमें सिर्फ prints different किए गए हैं. Otherwise, the concepts, the readings, the understanding is entirely the same thing. So, as a tarot card reader, मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे राइडर वेट रीड करना आता है, मैं 90% ऑफ डेक्स जो है वो रीड कर सकती हूँ खुद से. सो इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू लर्न टैरो कार्ड्स, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप एंजल कार्ड्स कर लो, आप ये वाले कार्ड्स कर लो, आप ये वाले कार्ड्स. ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग्स देते हैं वो भी, बट पर्सनली व्हाट आई फील दैट अगर आपको राइडर वेट आता है, यू कैन रीड एनी अदर डेक, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द डेक्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग. ठीक है, जैसे कुछ कुछ डेक्स होते हैं, जैसे एक लेनॉर्मेंट का डेक होता है, कार्टोमेंसी होता है, दिस इनके लिए बेसिकली आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा. बट मैक्सिमम जो ऑरेकल डेक्स होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, बेसिकली सब कुछ एक लाइनेज में समझ आ जाता है, तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स. ठीक है, सो दिस demo, this class today, we over here we are meeting, we are going to talk about actually what tarot cards do you mean by them. ठीक है, लाइक बेसिकली ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में हमें प्रिडिक्शन से ज्यादा इनसाइट प्रोवाइड करते हैं.
दे प्रोवाइड अस मोर ऑफ एन इनसाइट. अब इनसाइट क्या होता है? इनसाइट इज समथिंग, अ व्यू पॉइंट. हम कहते हैं ना, किसी चीज को हम इनलाइटन कर दें तो हम उस चीज के हिसाब से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, एंड देन वी कैन बिहेव अकॉर्डिंगली. राइट? तो ये मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को इनलाइटन करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अननोन पर्सन इज कमिंग एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मुझे कहता है, मेरे को जी ये बता, मेरे करियर के बारे में गाइडेंस बताओ. आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन, I don't know the date of birth of the person. I don't know anything about that person. But trust me on this. अगर मेरा मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्शन है, they do give me मतलब a complete that thing, लाइक इनसाइट. वो एक कंप्लीट इनसाइट देते हैं कि इंसान के अंदर, अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ था. दिस इज वेरी कॉमन विच हैपेंस विद मी ऑनेस्टली स्पीकिंग. एंड इफ एनीवन आउट देयर इज अ टैरो कार्ड रीडर और एनी अदर कार्टो रीडर और समथिंग लाइक दैट, जब वो रीडिंग करते हैं वो पूछते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल, अब अगर ये एक कार्ड आया दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो अगर मैं इस इंसान को ये पूछने की कोशिश करूंगी कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका लाइफ का कोई एक साइकिल खत्म हुआ है, या कुछ कर्मा हिट बैक किया है आपको भी रिसेंटली, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव पे, वो बंदा हाँ कहेगा. बिकॉज दे एक्चुअली गिव यू अ वेरी डीप इंसाइट अबाउट योर अबाउट योर ओन लाइफ टू योर ओन सेल्फ इटसेल्फ. ठीक है? बेसिकली ये एक ऐसा टूल है हु ब्रिंग पीपल टुगेदर. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम एक ही टाइम पे रीड कर सकते हैं, उसकी इनसाइट्स, उसकी डिटेलिंग हम मल्टीपल स्प्रेड्स के साथ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं. बट इवेंचुअली एक टाइम पे एक क्वेश्चन को हम लोग केटर करते हैं. लाइक अब फॉर एग्जाम्पल हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे होते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं एक पर्सपेक्टिव देख रही हूँ, मुझे दूसरा पर्सपेक्टिव दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टैरो में जब मैंने एक सवाल करा है, इट इज लाइक दैट ओनली, कि मेरे को उसी सवाल का जवाब मिलेगा, उसी कॉन्टेक्स्ट पे मिलेगा. उसके आसपास क्या चीजें इफेक्ट हो रही हैं शायद वो पता लग जाए, बट मिलेगा उसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे. अगर मैं करियर के बारे में पूछ रही हूँ, तो मुझे करियर के बारे में ही आगे डेप्थ इन इनलाइटमेंट मिलेगी. Right? It basically helps you to take correct and appropriate decisions for your career, love life, relationship, money matters, whatever, pregnancy related issues, whatever you want to get to know. Sometimes they can be very cruel, reality भी दिखाते हैं. Tarot is nothing rosy rosiness. Tarot is always about like reality checks. वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है? ओके ना, अपार्ट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, ये आपको मेजरली लाइफ में क्लैरिटी देता है. ट्रस्ट मी ऑन दिस, सिंस द टाइम आई हैव बीन अ टैरो का. व्हाई, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, व्हाई आई स्टार्टेड टू स्टडी टैरो. because like obviously a lot of people like maybe जब I was in my school college years, I just booked one session once with a tarot card reader, and like it, I just went out to that lady, and I sat and I just asked one or two questions to her, and she gave me such a wonderful insight, and that fascinated me like anything. आई वाज लाइक, यार ये मेरे को ये बंदा जानता नहीं है, इसने फिर भी मुझे कैसे गाइड कर दिया. आई एम स्टिल थैंकफुल टू दैट लेडी दैट डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई मतलब लाइक आई कैन नॉट टेक हर नेम अभी इस रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पे, बट आई स्टिल एम थैंकफुल टू दैट लेडी बिकॉज शी टोल्ड मी सर्टन थिंग्स, एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज ऑफ हर. सो लाइक इतना कभी कभी इन्फ्लुएंस कर देता है. एक छोटी सी मीटिंग, किसी की बोली हुई एक स्टेटमेंट, मुझे उस लेडी से पता लगता है कि किसी की बोली हुई एक छोटी सी स्टेटमेंट भी, कि कोई एक दूसरा बंदा इतना जोर से पकड़ के बैठ जाता है. उस लेडी ने मुझे बोला था, इफ यू वांट टू गो इन और ट्राई इन फॉर स्पिरिचुअलिटी यू कैन. तो आपकी कार्ड्स पॉजिटिव है स्पिरिचुअलिटी के लिए. बस वो मेरे दिमाग में ना चीज घर कर गई, एंड हियर आई एम टुडे. लाइक आई ट्राई माई बेस्ट in my spirituality. I'm a Reiki healer. I'm a like Vastu consultant. I'm an astrologer. I'm a tarot card reader, numerologist. तो ये सारी चीजें क्या है मेरी उसके बाद से स्टार्ट हुई बेसिक. राइट? सो दिस इज हाउ tarot gives you a like outline about your life as well. ठीक है जी. अच्छा, ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है. ट्रस्ट मी ऑन दैट. अ वेरी वेरी गुड प्रोफेशन. आई एम अ टैरो कार्ड रीडर. आप लोग अगर बाहर देख जाओगे, देखोगे, देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच यू कैन स्टार्ट टू अर्न. आप लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद 15 या 20 मिनट्स के सेशन का 800 रुपीज चार्ज करती हूँ.
right? So you can say, easily say this thing, there are a lot many platforms these days out there, astrotalk, astrosage, like इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं. एक कंपनी हमारे साथ भी एसोसिएटेड है, तो लाइक इफ समवन डज अ प्रोफेशनल कोर्स विद अस, तो हम उसके साथ उसको एसोसिएट कर देते हैं, एंड इट बिकम्स अ लिटिल इजियर टास्क फॉर योर इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग, राइट? सो बेसिकली दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ठीक है ना, मतलब यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टू अर्न. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी टैरो में रेसिप्रोकेशन डेफिनेटली ज्यादा है. लाइक यू कैन पुट अप स्टॉल्स आउट देयर इन योर मार्केट्स, इन फेस्ट्स, इन फेयर्स, इन एग्जीबिशंस. मैं लगाती हूँ, राइट? लाइक इन दिवाली, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली मैंने बहुत सारे फेस्ट्स किए हैं, लाइक इन कॉलेजेस, इन होटल्स, इन क्रिसमस इवेंट्स, इस तरीके से. So there were a lot of many events out there, and I have earned good over there. People actually are inclined towards tarot these days, so it actually helps you to earn good as well. ठीक है जी. Okay, now moving ahead, दिस इज ऑब्वियसली अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. ये भगवान की तरह है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ टैरो भगवान है, नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ. वेरी रिलीजियस एंड अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. बट मैं ये सिंपल सी एक चीज मान रही हूँ. अगर हम भगवान में मानते हैं, अगर मैं मान रही हूँ, ये मेरी जो सामने पत्थर की मूर्ति रखी है, इसके अंदर जान है, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम उसकी, तो फिर मेरे कार्ड्स में भी पूरी जान है. ये मेरे से बात करते हैं, ये मुझे जवाब देते हैं, और ये मुझे कभी भी झूठ नहीं बोलते, राइट? अगर मैं कभी कुछ रोजीनेस अगर सुनना भी चाहती हूँ, लेकिन अगर इनको लगता है कि मुझे रियलिटी चेक देना, तो ये मेरे को रियलिटी चेक देते हैं, राइट? सो इट इज योर बिलीफ सिस्टम, इट वर्क्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम एंड योर इंट्यूशंस मेजरली. इट एक्चुअली वर्क्स ऑन आइदर ऑफ दोज थिंग्स, राइट? मूविंग अहेड, हिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स. आई एम श्योर हम सब लोगों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है. मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती थी. आई स्टिल रिमेम्बर बोर्ड्स में कानों को हाथ लगा लिया था मैंने, आज के बाद कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगी. बट ठीक है, हिस्ट्री पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वी शुड नो वेयर वी कम फ्रॉम. तो इसीलिए टैरो जो है बेसिकली ये ना, यूरोप में 15th सेंचुरी में एज प्लेइंग कार्ड्स की तरह यूज किए जाते थे, जो टैरो कार्ड्स होते हैं, राइट? सो दैट्स हाउ स्लोली एंड स्टेडली दे स्टार्टेड टू गेन अ विजडम. 1791 में एक्चुअली देयर वाज दिस फर्स्ट पर्सन जिसने इसको एक स्पिरिचुअलिटी टूल के बेसिस पे नाम दिया. एंड देयरफॉर ये ए ई वेट, तभी से राइडर वेट कहा जाता है. इट इज नेम्ड आफ्टर हिज नेम. एंड विलियम राइडर, इन दोनों ने मिल करके इसको प्रॉपर एक स्पिरिचुअलिटी, एक प्रोसेस, एक टेक्निक के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी बेसिकली. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैरो कार्ड्स. मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ आज एक टैरो कार्ड्स की. दिस विल बी लिटिल न्यू फॉर दोज जो रीडर्स नहीं है, बट यस, लेट्स स्टार्ट. बेसिकली जो राइडर वेट डेक होता है, ये 78 कार्ड्स का डेक होता है. इट्स अ 78 कार्ड्स डेक, राइट? एंड दिस डेक, अब दिस इज टफ. 78 कार्ड्स, सारे कार्ड्स के मीनिंग याद करने पड़ेंगे. इट इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी ऑन दिस. एक एक कार्ड का मीनिंग ही नहीं याद करना है. कार्ड को देखना है, उसको समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड वी आर गुड टू गो विद इट. इट्स लाइक दैट. इट इज वेरी सिंपल. कार्ड्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. वन इज मेजर आर्काना and one is minor arcana. So there are 22 cards of major arcana, and there are 78 minus 22 is 56. 56 cards of minor arcana. ठीक है, ये दो सिंपल कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो हमारी वर्क करती हैं टैरो कार्ड्स. ठीक है, अब मेजर अरकाना जो हैं वो मेरे लाइफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. मेजर लाइफ इवेंट्स, या फिर मैं ये कह सकती हूँ जो मुझे लाइफ में लेसन्स लेने की जरूरत है, उस पर्टिकुलर चीज को ये रिप्रेजेंट करते हैं. टॉकिंग अबाउट माइनर आर्काना ना आगे हमारा थोड़ा सा सब डिवाइडेड है. थोड़ा सा माने 4 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड है. So in minor arcana there are 4 different suits. सूट्स क्या होता है? जैसे हम ताश के पत्तों में खेलते हैं ना, स्पेड्स,
हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, ऐसा, राइट? तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस टैरो कार्ड्स के 4 सूट्स होते हैं. व्हाट आर दो सूट्स कॉल्ड? सूट ऑफ wands, then there is suit of cups, then there is suit of pentacles, and then last is suit of wands, cups, pentacles, swords. These are the 4 suits which we have, right? Suit of wands, suit of cups, suit of pentacles, suit of swords. अब रही बात मेजर अरकाना की. मेजर अरकाना कार्ड्स कैसे होता है? I'll show you. कार्ड्स के नीचे इस तरीके से नाम लिखा होगा. द हायरोफाइंट, ये देखो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. I'll show you the other cards as well, like the sea, the magician. इस तरीके से जिन कार्ड्स के अंदर नीचे, सॉरी, beneath इस तरीके से नाम लिखे होंगे उसको हम मेजर आर्काना कहते हैं. स्वर्ड्स ऐसा होता है, यू कैन सी. ये थोड़ा हार्ट ब्रेक वाला कार्ड दिखा रही हूँ, सॉरी, 1 सेकेंड. हाँ, ओके. सो दिस इज लाइक स्वॉर्ड. स्वॉर्ड क्या है? तलवार, ठीक है ना. वॉन्ड क्या है? ये खंबा टाइप डंडा वॉन्ड होती है ना, ठीक है. ये थोड़ी बड़ी वॉन्ड है, या थोड़ी बड़ी वॉन्ड लगा लो, ठीक है. देन व्हाट एल्स वी हैव? पेंटिकल्स. कैन यू सी पेंटिकल्स? ये ऐसे कॉइन्स टाइप्स बने हुए, ठीक है. ये देखो, दिस गाय होल्डिंग अप अ कॉइन. सो बेसिकली दिस इज अ पेंटिकल कार्ड, ठीक है. कप्स कैसे होते हैं? कप्स ऐसे होते हैं. सी, दीज आर द 3 कप्स दीज पीपल आर होल्डिंग आउट, ठीक है. सो दिस इज सूट ऑफ कप्स. सो आई हैव शोन यू swords, I have shown you wands. I think I've shown you major all the type of cards, है ना. So इस तरीके से ये बेसिकली कार्ड्स जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. अब हमारे ताश के पत्तों में, ठीक है, कैसे होता है? एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, ऐसे होते हैं ना. इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा ही होता है. एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 of pentacles, 3 of pentacles, so on and so forth till 10, ठीक है. फिर 11, 12, 13, 14th कार्ड जो है वो हमारे ताश के पत्तों में पिक्चर कार्ड्स होते हैं. यहां पे भी पिक्चर कार्ड्स हैं. इट इज कॉल्ड एज 11th कार्ड इज नोन एज पेज, 12th कार्ड इज नोन एज नाइट, 13th कार्ड इज नोन एज क्वीन, and 14th card is known as king. Therefore, page of wands, page of pentacles, page of swords, and page of cups. Knight of wands, knight of pentacles, knight of cups, and whatever the particular suit is left. So queen of pentacles, queen of swords, queen of wands, queen of cups, king of pentacles, king of wands, इस तरीके से respectively होता है. So therefore, what do we know by this thing? I can say this thing, that each suit has 14 cards. I hope we are good with this. Anyone, any questions up till here? You can go ahead and ask me right now. Or anyone wants to give any input, they can unmute themselves and they can ask me. Okay, I have a message here. Okay, Raj, fair enough. चलो, आपको मतलब you said yes, कि आपको ये समझ आ गया. So yes, this is what your major thing. अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि मेजर आर्काना कैसे देखने हैं, लाइक आई टोल्ड यू, मेजर आर्काना के नीचे से लिखा होगा, ठीक है. मुझे स्वॉन्ड पता लग गया कि कैसा दिखता है, मुझे कप पता लग गया कैसा दिखता है, मुझे पेंटिकल पता लग गया, और मुझे स्वॉर्ड पता लग गया. तो मेरे को कोई ये बता सकता है, एनी वन ऑफ यू, अनम्यूट करके, कि यार मेरे को कोई ढंग का कार्ड क्यों नहीं दिख रहा है? डोंट अंडरस्टैंड. 1 सेकेंड प्लीज. हाँ, ये कौन सा कार्ड होगा? दिस. इसके नीचे तो वैसे लिखा हुआ है कि कौन सा कार्ड है. फॉरगेट इट. यस, दिस वाज पेंटिकल्स का कार्ड, करेक्ट. कैन एनीवन टेल मी ये किस चीज का कार्ड है? Sword. Sword.
3 ऑफ स्वॉर्ड्स हो गए। वाई 3? क्योंकि वी कैन सी 3 स्वॉर्ड्स ओवर है। ये किस चीज का कार्ड हुआ? कप। ठीक है, सो देर इज अ सिंगल कप ओवर हेयर, सो इट इज एस ऑफ कप्स। ठीक है जी, लाइक ओके नाउ दिस, ओके दिस, देर इज अ वॉरियर हियर जब, वॉन्ड। यस Wands. इट्स अ, Wands. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि हमें कार्ड को देखना कैसे है। ठीक है, तो सिंपल लर्निंग के लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्वॉर्ड्स का क्या मतलब है। स्वॉर्ड्स का मतलब होता है इंटेलेक्ट, एंड इट रिप्रेजेंट्स एयर एलिमेंट। मुझे ये पता होना चाहिए वॉन्ड्स का क्या मतलब है। वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स माय पैशन विच इज अ फायर एलिमेंट। ठीक है, अब अगर किसी की, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, किसी की रीडिंग में बहुत सारे वॉन्ड्स आते हैं, तो मैं कहूंगी दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट। फायर एलिमेंट इज वेरी पॉजिटिव, उसको मूवमेंट में रखा है। अगर किसी के पास बहुत सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आते हैं, मैं कहूंगी ये बंदा बहुत लॉजिकली सोचता है, इंटेलेक्चुअल है। कप्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेरे इमोशंस, वाटर एलिमेंट है। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स माय फाइनेंसेस ऑफ माय लाइफ। तो अब मुझे बेसिक बेसिक ये चीज पता लगी कि मेरा कौन सा सूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब अगर किसी के रीडिंग में बहुत सारे वॉन्ड्स आते हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी पैशनेटेड। अगर बहुत सारे स्वॉर्ड्स आते हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल। बहुत कप्स आते हैं, इमोशनली ज्यादा सोचता है। बहुत ज्यादा पेंटिकल्स आते हैं, पैसे को लेके बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। एंड मुझे एक लॉजिकली चीज सोचकर बताओ कि इन 4 चीजों के अलावा हमारी लाइफ में और क्या चीज है जिसके बारे में हम सोचते हैं। You pick up anything, any part of your life, any event of your life, any thought of your life also, any relation of your life also, वो घूम फिर कर इन्हीं 4 एलिमेंट्स या इवेंट्स के आकर ऊपर ही टिकेगी। That's what. So that means जो मेरा सूट है वो मेरी लाइफ की जनरल चीजों को लेके मुझे गाइड करता है। That's what I'm trying to tell you. मतलब अगर मेरे को ये किसका कार्ड है, ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है। मैंने अब यहाँ पे अगर मैं काउंट करूंगी, वैसे ऊपर नंबर भी लिखा है बट स्टिल अगर मैं काउंट करूंगी देयर आर 6 स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर मेरी रीडिंग में ये नंबर आ रहा है, दैट मीन्स आई नीड समवेयर इस पर्टिकुलर कार्ड का कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट करना, या कुछ इस कार्ड के रिलेटेड चीज या इवेंट मेरी लाइफ में चल रही है। राइट, वो कैसे रीडिंग करनी है, ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट इट लेटर, बट हाँ, इस तरीके से टैरो कार्ड्स हमारे कनेक्ट होते हैं। आई होप वी आर गुड विद दिस। एनी क्वेश्चंस एनीवन ओवर हियर? ओके, सो आई एम टेकिंग अ थम्स अप ओवर हियर एंड आई एम मूविंग अहेड नाउ। अगर मैं आप लोगों की जगह होती ना, मेरा एक क्वेश्चन जरूर आता। ठीक है, ये आपने तो बता दिया कि ऐसे ऐसे इसका ये मतलब है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? कार्ड्स हमें क्यों बताएंगे? आपका तो आपके कार्ड्स के साथ कनेक्शन है, तो हम कैसे बना सकते हैं? आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन। आप तो स्पिरिचुअल हो, आपको तो हीलिंग्स आती है, आपको तो मेडिटेशन आती है, हम तो मेडिटेशन नहीं करते। तो क्या मेरे साथ मेरे कार्ड्स कनेक्ट नहीं हो सकते? ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट लाइक दैट। एक चीज हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ा एथीस्ट होता है ना, वही भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनता है। दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ लॉ। क्यों? क्योंकि वो भगवान में ज्यादा लॉजिक से फिर मानता है। Similarly, if you are not spiritual, if you are not from spiritual background, आप meditations नहीं करते हो या ऐसा कुछ नहीं होता है, it is not that cards will not revert you. You have to make a connect with your cards. जब हम एक नया दोस्त बनाते हैं, हम उस नए दोस्त को बार बार बात करते हैं, थोड़ा उसके साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बहुत बातें करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ हम अपने आप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, तभी तो हमारी धीरे धीरे फ्रेंडशिप अच्छी होती है। दैट इज वॉट यू हैव टू डू विद योर कार्ड्स। वो जो आपने टिपिकल लाइक कभी देखा होगा ना,
कि वो पर्पल में लेडी ऐसे कार वो स्प्रेड आउट करके विद लॉट्स ऑफ कैंडल्स एंड दैट क्रिस्टल बोल हेड है ना, वो वाली चीज, इतने बड़े बड़े नेकलेसेस एंड उतनी बड़ी बड़ी क्रिस्टल रिंग्स, ऐसा ऐसा करके। ऐसा जरूरी नहीं है कि टैरो कार्ड रीडर ऐसा ही हो। सी यू कैन सी मी, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मेरे पास कोई ऐसा ऑल्टर नहीं है, पहले था। यस, वो मैंने भी थोड़ी देर के लिए वो क्या हुआ, उठाया हुआ है, बट हाँ, इट्स ओके, नॉर्मल, इट्स गुड टू हैव एन ऑल्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ यू डोंट वांट टू हैव इट एंड यू स्टिल वांट टू गेट अ कनेक्शन विद योर कार्ड्स, यू कैन हैव इट। हाउ टू डेवलप दैट कनेक्शन, वो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बस कनेक्शन डेवलप करते हो, वो वैसे ही डेवलप करना होता है, दैट्स इट। थोड़ी बहुत ही मेडिटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी बहुत ही क्लेंजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये तो नहीं है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं करोगे, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उस चीज में घुसने की जरूरत होती है, ऐसा भी नहीं होता। राइट। आपके घर वालों को जरूर कभी कभी स्पूकी लग सकता है कि ये क्या मोमबत्ती जला के कार्ड्स के साथ ऐसा 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 कर रही है, बट यू आर क्लेंजिंग दी कार्ड्स। वो फुल मून से कर सकते हो, सेज के साथ कर सकते हो, फायर एलिमेंट कैंडल्स के साथ कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, दैट वे। I hope we are good till here. Anyone, any questions up till here? Okay, fair enough. Ma'am, one question was there. Yes, please go ahead. May I know who's asking Ma'am, question? yeah, yeah. My name is Raj Kulade. Yes, Raj. Actually, Tell. I'm first time attending your session. Okay, welcome. Actually, मुझे मुझे पूछना ये था कि जैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग इफ इन केस कर रहे हैं, तो उसमें हमें सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग में जाना है, हीलिंग साइड पे नहीं जाना है। कि जरूरी हीलिंग नहीं है। में बहुत अगर आप, सारी, हाँ हाँ, प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन। अगर चूंकि हीलिंग में मुझे इसलिए भी नहीं जाना क्योंकि मैंने उसके बहुत सारी चीजें सुना हुआ हूँ कि यू हैव टू क्लेंज योर सेल्फ ऑल्सो, सम मीन्स एवरी डे इफ यू आर डूइंग दैट वर्क एंड many things happen with that because you are taking the negative energy from them and giving your positive energy to them. So if in case we are choosing a profession as a part time of a tarot card reader, because I'm working here, I'm working in a channeling as a business analyst for now. ओके। So I am thinking of this perspective as a part-time job for me. So can यस, it help me with that? यस डेफिनेटली। सी लाइक दैट, लाइक व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कि अगर आपको मेडिटेशंस में नहीं जाना है, मत जाइए। मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे 7 7 साल हो गए, शायद ज्यादा, आई स्टॉप्ड काउंटिंग नाउ दो, अप्रोक्सीमेटली। मैंने आज तक कभी मेडिटेशन से अपने कार्ड्स को हील नहीं किया है। मैंने आज तक अपने कार्ड्स को कभी रेकी नहीं दिया है, दो आई एम अ रेकी हीलर। मैं हीलिंग्स देती हूँ लोगों को रेकी से, आई एम अ हीलर, मैं बहुत मेडिटेशंस करती हूँ, राइट, बट स्टिल आज Okay, तक मैंने मेडिटेशन से अपने कार्ड्स को नहीं हील किया, क्लेंस किया। So, okay, okay, yeah, that's what I'm saying. कि if you do not want to go into the healing side, but you want to become a reader, you can. ऐसा नहीं होता कि आप नहीं बन सकते। It's like that. okay, ma'am. Thank Yes. you, sir. You're welcome, Raj. No issues. चलो, अब हम लोग क्या, कुछ की टर्म्स होते हैं हर प्रोफेशन के, कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं, है ना। आई एम श्योर यू गाइज विल अग्री विद मी ओवर हियर। ऐसे ही टैरो में भी कुछ की टर्म्स हैं। स्प्रेड होता है, स्प्रेड वो हम बड़ा लाइक यू नो, इट यूज टू लाइक फैसिनेट मी अ लॉट। इस तरीके से जो टैरो कार्ड रीडर्स निकाल करके ना, ऐसा निकाल के पूरा स्प्रेड करते हैं और फिर वो कहते हैं कि उठाओ कार्ड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस हैपेंस विद मी व्हेन आई गो इन फॉर द इवेंट्स, पीपल आस्क मी दिस थिंग एट दैट टाइम, विल यू अलाउ मी टू पिक अप द कार्ड। आई एम लाइक ठीक है, कर लो यार, तुम पिकअप कर लो। मैं उनके सामने से स्प्रेड करके रख देती हूँ, कहती हूँ उठाओ। सो लाइक पीपल लाइक दिस थिंग, उनको बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है। सो दैट्स व्हाट इट हैपेंस एक्चुअली। तो वो स्प्रेड इज बेसिकली पिकिंग अप अ करेक्ट थिंग, करेक्ट वे टू पिक अप द कार्ड्स ऑफ वॉट एवर सिचुएशन द पर्सन इज गोइंग इन विद। पोजिशनिंग ऑफ द कार्ड होता है कि हम कार्ड्स को पोजिशन करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे, या फिर कार्ड ए कार्ड बी, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग। ट्यून इन होता है, ट्यून इन मीन्स दैट यू आर गेटिंग इन कनेक्शन विद द angels and the spirits which are out there, who are actually helping you to like read the cards and give the messages and everything. एक हिट मैसेज होता है, एक हाई इंट्यूशन मैसेज होता है, इट जस्ट हिट मी। मतलब कार्ड्स कुछ होंगे, लेकिन मेरी इंट्यूशन ने मुझे शायद कुछ और बोला बोलने के लिए, तो वो हिट मैसेज होता है बेसिकली। सो दैट्स व्हाट दिस हिट इज। ठीक है। कर्म, कर्मा, लाइक कर्म तो हमें पता ही है व्हाट कर्मा इज, राइट। एक होता है गॉड वर्ड। गॉड वर्ड क्या है, ये हिट के साथ आता है। लाइक जो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्प्रेड खोला,
स्प्रेड खोल के कार्ड्स को देख के एकदम से कोई वर्ड मेरे दिमाग में हिट किया, सो दिस दैट इज कॉल्ड एज अ गॉड वर्ड। ठीक है, एक साइकिक प्रोटेक्शन होता है। डेफिनेटली आप अगर लाइक किसी के लिए रीडिंग कर रहे हो, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ कैसे प्रोटेक्ट करना होता है? सिंपल एक कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस होता है जो 1 सेकंड का होता है, वो वील टीच यू दैट, वो उससे हो जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड ऑफ कोर्स you need to be very good and genuine card reader. It is very important for you. अपने biases नहीं लाने, trust me on this. 99% ऑफ द टाइम्स मैं अपनी रीडिंग खुद नहीं करती। सब मुझे ये कहते हैं, अरे वाह तू तो टैरो कार्ड रीडर है, तू तो सब बता देती है, तू अपनी रीडिंग तो खुद कर लेती होगी। ट्रस्ट मी, मैं फोन कर रही होती हूँ अपने फ्रेंड्स को, यार प्लीज मेरी रीडिंग कर दो। बाय, बिकॉज हम लोग वो शायद रियलिटी चेक, अगर मैंने खुद की रीडिंग करनी है, मैं वो रियलिटी चेक अपने लिए वो देख ही नहीं पाऊंगी जो मेरी सामने वाला बंदा मुझे बता सकता है। सो यू नीड टू बी लिटिल एथिकल, जो कार्ड में है एक्सेप्ट इट, राइट? सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली डज, वी डू दैट। कुछ एथिक्स होते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के। आप ड्रिंक करके रीडिंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव लीकर, और आप मजे मजे में हाँ जी लीकर पीओ या कोई बात नहीं, हा हा ही कर रहे हैं, एंड देन वी कैन जस्ट लाइक आर डूइंग द रीडिंग्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक अगर आप खुद मेंटल फेज एक ऐसा चल रहा है, बहुत डिप्रेसिव, बहुत नेगेटिव हो रखे हो, तब आपने अवॉइड करनी है रीडिंग करनी। ठीक है, अनदर थिंग इज कि लाइक अगर आपके क्लाइंट ने जिस टाइम पे वो रीडिंग करवा रहा है उस टाइम पे क्लाइंट ने ड्रिंक किया हुआ है, तो उस टाइम पे भी आपने रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, एंड अगर एक बंदा आया, मैं तो चेक करने आया हूं कि तू सही है कि गलत है रीडिंग में, उस बंदे की तो कतई रीडिंग नहीं करनी है। दैट्स व्हाट, आई होप यू आर गुड विद दिस। रिवर्स ऑफ कार्ड्स, जब हम कभी कार्ड्स का, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए कोर्स ज्वाइन इन करने के लिए, कार्ड्स का मीनिंग करेंगे तो मैं तब बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है दिस इज द अपराइट पोजिशन। अगर मेरा कार्ड ऐसे आया है तो वो अपराइट है, अगर वो ऐसे आया है वो रिवर्स हो गया। दिस हैज अ डिफरेंट मीनिंग, दिस हैज अ डिफरेंट मीनिंग, राइट? सो वो रिवर्स वो चीज होती है। forget this. Now a lot of tarot card readers do not read reversed meanings. वो रीडर की अपनी खुद की चॉइस होती है। अगर आपको रीड करना है रिवर्स, आप रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को रिवर्स नहीं रीड करना है, सीधा ही रीड करना है, आप सीधा करके भी रीड कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, देर आर सम स्कैरी कार्ड्स, जैसे मैंने बोला कि रोजी रोजीनेस नहीं है सिर्फ कार्ड राइडर वेट में, देर आर सम प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स एज वेल। एडिक्शन, जैसे वो एक वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का देखा था ना हमने, वो वाला कार्ड अब मुझे वो दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ ना आप लोगों को। डज दिस हैपन विद यू गाइज ऑल्सो? आई एम सो सॉरी। लाइक जैसे ये एक थोड़ा सैड सा कार्ड है। ठीक है, दिस इज अ लिटिल सैड कार्ड, एंड देन सी दिस इज अ लिटिल सैड कार्ड, ये तो दिख ही रहा है, बेचारे दिल पे छुरियां चल रही हैं, है ना? सी दिस इज वन ऑफ अ स्कैरी कार्ड, टावर, कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे, है ना? लाइक दिस, एंड देन सी दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, एंजल्स ब्लेस कर रही है कपल को, पता लग रहा है लवर्स कार्ड है ना? ये इस तरीके से लाइक देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। एक ये बड़ा स्कैरी सा कार्ड होता है, इट्स अ डेविल कार्ड, ये शक्ल देख के ही पता लग रहा है इट्स नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। सी दिस, सो देर आर सर्टन स्केरी कार्ड्स एज वेल। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जो मुझे ऊपर ऊपर नजर आए, वो मैंने फटाफट से आपको दिखा दिया। सो दीज आर सर्टन टाइप्स ऑफ कार्ड्स जो आपके एक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। आई थिंक दिस इज, ये सारी चीजें जो है ये थ्रेटिकल है। देर इज नो पॉइंट इफ इन ऑफ डूइंग दीज थिंग्स इफ इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड in learning tarot. So basically, of course, this demo was basically to make you introduce that what actually tarot is, how it works, and how you can help people out there. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक टैरो कार्ड की डेमोन्स्ट्रेशन कर देती हूँ। सो ओनली वंदना एंड राज हैज interacted with me in the entire session, so I'll be doing one general guidance for both of them. ठीक है, so Vanda, can you please unmute yourself फटाफट से and tell me your date of birth if you don't mind? I'll do it. Or 27/5/1979. Okay, 27. General guidance, general reading guidance for Vandana. General reading guidance, Vandana. Okay, so basically these are like, for example,
the 5 cards which has come up for Vandana. So we can see that there is one Wands card. This is one a major arcana. This is a court card, like again a cup card, pentacle card, and then a sword card. Oh my God, she has got all the 4 suits out there in this particular reading. So what can I see that maybe शायद अभी recently वंदना आपको कोई success मिला है. अगर success नहीं मिला तो फिर बहुत जल्दी किसी चीज के लिए अगर आप कुछ अचीवमेंट सोच रहे हो कि मिले मिले मिले, वो मिलने वाला है डेफिनेटली. आप कुछ पढ़ाई में अच्छा करने वाले हो बिकॉज दिस इज द गॉडेस ऑफ एजुकेशन फॉर श्योर. अपने इमोशंस के साथ आप थोड़ा प्ले कर रहे हो. You're little playing with your emotions. You are meeting certain people for your new opportunity. किसी एक सीनियर मेल की इंटेलेक्ट से आप आगे बढ़ सकते हो. जो भी चीज आप किसी भी से भी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हो, वो किसी सीनियर मेल के साथ रखना, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए. बट down the line I can see you little sad deep inside. Maybe you're not sharing your emotions with the people out there. ठीक है, मतलब you're working positively in your life, but हो सकता है अंदर दबे हुए emotions बहुत ज्यादा हो सकते हैं आपके. ठीक है, तो उसको वेंट आउट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. Right. So this is a general guidance. So this is Vandana, were you able to connect with the reading? Yes, everything is right. Only I've not met anyone senior type. But as the study wise, I'm doing a lot of things. I'm doing tarot reading. I'm doing face reading. I'm a prani healer. I'm a Reiki healer grandmaster. Great. Plus, I'm a Greek. I've done Greek magic. Greek magic. I've done folklore chants. Oh my And God, I'm just I doing. think I can get in contact with you person. I think I am going to learn a lot of things from you. Okay. Yeah, that's So in really that great. sense, I'm doing a lot of things. But as for this consulting and all, I've just started from just last month. So Okay. Insta and all I'm doing on, it is in process, but not giving not or such good response yet. But Got ठीक it. है, चल रहा है. But then everything is going on as what you said. Everything is going on the track. So now this is how मैं वंदना को personally honestly नहीं जानती. Like हमने starting में discuss किया था. We are meeting also for the first time. She's joined the session for the first time. So see how tarot has given me a little bit of light about her mindset, her gist, about her background in general, basically. So this is how we actually work over here. Raj, I'm so sorry we're running out of time, but I would really like to do your reading, but probably next time. Right. So this is about, so we are obviously launching a course. We are going to start with the course tomorrow itself. In case any one of you would be interested, it's a complete basic to professional course. आपको basic मतलब from zero to from scratch to the professional level आपको हम tarot के बारे में सब कुछ करवाएंगे. I will share the entire course content and everything in the group and the fee structures as well. Anyone who would be interested in, you can definitely DM me in person or in the group wheresoever you will require.